based expression. The another one is POS based expression. SOP based expression like AB plus BC plus CA. This is the example of SOP based expression. POS based expression is like that: A plus P dot B plus C dot C plus A. C plus AB, no problem. Okay. So K-map is separately designed for solving the SOP based expressions or POS based expression. So we have covered SOP based expression simplification with the help of K-map. Now we are going to discuss the POS based expression simplification with SOP, with the K-map. POS is also called maxterm. Okay, few points I want to clear. POS is also called maxterm. SOP is also called minterm. Okay, it is denoted by pi symbol. Okay, this is the symbol actually, pi. The property of POS is 0. These four very important points to start the topic. POS is also called maxterm. It is denoted by pi. The property of POS is 0. So each and everything we have to write in the term of 0, not 1. Okay, now as we know that for two variable there is a different K-map structure. For three variable there is a different K-map structure. They are different on the basis of block. In the two variable, there are less number of blocks in the K-map. In three variables, there are more number of blocks in the K-map. Similarly, for four variable, there is a different K-map structure in terms of blocks. So first of all, we will see how two variable K-map structure will be drawn in POS. For three variable, how the K-map structure will be drawn, and for four variable, how the K-map structure will be drawn. Then we will solve the questions. Understand? Okay. So immediately, MS Paint. Okay. Two variable. तो टू वेरिएबल्स के लिए हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है 2. This is the formula 2 to the power number of variables. If there are two variables, then 2 to the power 2 is equal to 4 blocks will be drawn. 4 blocks. Okay. How these 4 blocks will be drawn, you have to concentrate. Okay, these are the 4 blocks. Okay, 4 blocks. And you know that gray code concept. There is a similarity between the SOP K-map and POS K-map. The gray code will be same. जैसे उसमें gray code हम लोग लिखते थे, वैसे यहाँ पर भी हम लोग gray code लिखेंगे.
तो ये जो एरिया है वो ए के लिए होता है और ये जो ऊपर वाला एरिया है वो बी के लिए। तो यहां पर हम ए के कॉम्बिनेशंस लिखेंगे और यहां पर हम बी के कॉम्बिनेशंस लिखेंगे। मैंने अभी बताया कि द प्रॉपर्टी ऑफ के मैप, द प्रॉपर्टी ऑफ मैक्सटर्म और द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम इज जीरो। तो अगर जीरो है तो ठीक है, हमको जीरो ही चाहिए होता है पीओएस में, तो यहां पर हम ए लिखेंगे। बट अगर वन है तो वन को हमें जीरो में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि वन इज नॉट एप्लीकेबल इन पीओएस। तो वन को अगर हम जीरो में कन्वर्ट करेंगे देन वी हैव टू टेक ए कॉम्प्लीमेंट। प्लीज, अगर हम इसे कंपेयर करें एसओपी से तो वहां पर था ए बार ए, इधर था बी बार बी, यहां हो जाएगा ए बार और यहां हो जाएगा बी बार। तो हियर वी हैव टू राइट बी एंड दिस इज बी बार। दिस इज द डिफरेंस। Two things we have to consider, one is difference, the one is similarity. Similarity wise gray code will be same, difference wise verbose arrangement will be different. Now here we have to write down the number is absolutely same, 0 1 2 3. Understand? Same numbers will be there, 0 1 2 3, no problem. This is the two variable K-map structure for POS. Okay, control A and I'm sending in your group. One by one we will see all the combinations. Wait, just I'm deleting this. Now we have to see three variables. For PS, three variables, the formula will be the same. 2 to the power number of variables will be 3. So 2 to the power 3 is equal to 8. So 8 blocks we have to draw. How the 8 blocks will be drawn? Same as SOP, no problem. Same. Two blocks, 4 blocks, 6 and 8 blocks. Okay, this is for A, this is for BC. Okay, so left hand side portion will be for A and this is for BC. Now again we have to write down the gray code 0 1, this will be 0 0, and now we have to write down 0 1 1 1 and 1 0. Gray code concept. ग्रे कोड कॉन्सेप्ट इज वी हैव डिस्कस्ड कि जब भी हम किसी नेक्स्ट ब्लॉक में जाते हैं तो ओनली वी कैन चेंज अ सिंगल बिट। तो अब अगर हम ए को लिखें इस जीरो के अकॉर्डिंग तो जीरो ही चाहिए होता है हमें पीओएस में, तो वी कैन सिंपली राइट ए। बट वन नहीं चाहिए होता है पीओएस में, तो वन का कॉम्प्लीमेंट करके इसको जीरो बना देंगे। अब यहां पर हमको लिखना है बीसी बिकॉज बोथ आर जीरो। यहां पर हम वन को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वन का कॉम्प्लीमेंट। तो बीसी बार बीसी बार बी बार सी बार एंड बी बार सी। अंडरस्टैंड? ए बार BC, BC बार, B बार, C बार, B बार, C।
जहां पर 1 है उसका कॉम्प्लीमेंट कर लिया ताकि वो 0 बन जाए, और जो 0 है उसको एज इट इज लिख दिया, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑलरेडी 0, तो 0 ही हमको पीओएस के फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि द प्रॉपर्टी ऑफ पीओएस इज 0। होप यू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, 0 0 को हमने BC एज इट इज रखा, यहां पर 0 1 है, तो 0 को 0 की पोजीशन पे B आ रहा है तो वी हैव टू टेक एज इट इज, और 1 को 1 की पोजीशन पे C आ रहा है तो C को कॉम्प्लीमेंट कर। यहां पर दोनों में 1 है तो B बार C बार एंड B बार C। नंबर इज एब्सोल्युटली सेम 0 1, और लास्ट के दो नंबर हम स्विच कर देंगे 0 1 2 3 एंड 4 5 6 7. Okay, this is the 3 variable K-map structure for POS. Hope you understand. This is clear to all of you? Any doubt? Yes, sir. Any doubt? No. No, sir. All clear. Control C. Sending in the group. Actually, I'm not sending to the old students group. They must have these structures. Okay. Now, let me remove this. Now I'm writing 4 variable K-map structure POS. Okay. So how to draw the 4 variable K-map? This is most important. यही exactly आपसे एग्जाम में पूछा जाता है. Just a moment. Total how many blocks will be there? 16 blocks. 2 to the power 4 is equal to 16. So 16 blocks we have to draw. ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. Okay. blocks. Now we can do equally distribute. Equal distribution हो सकता है यहाँ पे. तो ये पोर्शन हमारा AB के लिए रहेगा और ये पोर्शन हमारा CD के लिए है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन व्हाट? ग्रे कोड्स 0 0 0 1 1 1 1 0. इन्हीं ग्रे कोड के बेसिस पर A और B की वैल्यू लिखी जाती है, और यहाँ के जो ग्रे कोड्स हैं उनके बेसिस पे C और D की वैल्यू लिखी जाती है. 0 0 0 1 1 1 1 0. जो ग्रे कोड्स हम इस साइड लिखते हैं वही ग्रे कोड हमें इस साइड लिखने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे भी 2 वेरिएबल्स हैं. तो ग्रे कोड अगर हम एक साइड के याद कर लें तो दूसरे साइड के लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं. जो अरेंजमेंट AB का इन ग्रे कोड के अकॉर्डिंग इधर होगा वही अरेंजमेंट CD का इधर होगा. याद करने के लिए आपको बता रहे हैं. तो ये हो जाएगा आपका A. ओके ओके, 1 minute actually, 1 minute, 1 minute. Actually, let me check the previous example. I think there is a mistake. One minute actually. Okay, I will discuss the 3 variable once again. I think I have done some minor mistake actually. Just 1 minute actually. So AB यहां पर एक्चुअली 0 0 है, तो 0 0 का मतलब है कि हमको A और B डायरेक्टली लेना है. बट वन इंपॉर्टेंट पॉइंट आई हैव मिस्ड, वी हैव टू टेक अ प्लस साइन बिटवीन देम.
बिकॉज दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम, दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ सम। और यहां पर हमें लिखना है ए प्लस बी एंड ए प्लस बी बार। द प्लस साइन वी हैव टू अंडरस्टैंड इन द प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम में इन टर्म्स के बीच में प्लस साइन होना कंपलसरी। यहां पर क्या लिखेंगे, ए बार प्लस बी बार, प्लस साइन मस्ट बी देयर। और यहां पर क्या लिखेंगे, ए बार प्लस बी। जीरो को डायरेक्ट लेंगे, वन को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार एंड ए बार प्लस बी। और यहां पर हो जाएगा सी प्लस डी, वेट फॉर अ सेकेंड, एंड सी प्लस डी बार एंड सी बार प्लस डी बार। अगर हम प्लस साइन नहीं लगाएंगे तो हमारी एक्सप्रेशन प्रोडक्ट ऑफ सम के फॉर्म में नहीं आएगी। और यहां पर सी बार प्लस डी, अंडरस्टैंड? ओके, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि बीच में प्लस का साइन होगा। और यहां पर नंबर्स आपके वैसे ही रहेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहां पर आ जाते हैं लास्ट में, 8 9 10 11 12 13 14 and 15. This is absolutely correct. A plus B bar, A bar plus B bar and A bar plus B. C plus D bar, C bar plus D bar and C bar plus D. This is the K-map structure for solving the 4 variable expression, product of some expression. ठीक है, तो एक बार हम अपना 3 वेरिएबल वाला रिकॉल कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉल कर रहे हैं उसको। इसे मैं आपके ग्रुप में भेज दूं। जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है। तो हम 3 वेरिएबल वाला एक बार रिकॉल करेंगे। ओके, 1 सेकेंड प्लीज। दिस इज 3 वेरिएबल जो अभी हमने थोड़ी देर पहले ड्रॉ किया था, उसमें एक माइनर सी मिस्टेक हो गई थी, मुझे अभी रियलाइज हुआ। जस्ट 1 सेकेंड। 0 1 ये हो गया, फिर उसके बाद 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0। अंडरस्टैंड? तो ये पोर्शन हमारा ए के लिए है और ये ऊपर का पोर्शन हमारा बीसी के लिए। अंडरस्टैंड? जस्ट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा ए बार, क्योंकि 0 को हमें डायरेक्ट लिखना है और 1 को हमें कॉम्प्लीमेंट करना। बस यहां पर जो बीसी लिखा जाएगा तो बी प्लस सी लिखा जाएगा, और यहां पर लिखा जाएगा बी प्लस सी बार एंड बी बार प्लस सी बार एंड हियर बी बार प्लस सी। नाउ इट्स एब्सोल्युटली फाइन। बस ये प्लस साइन आई थिंक आई हैव फॉर, शायद मैं भूल गया था इस प्लस साइन को लगाना, तो अभी मैंने इसको लगा दिया। ठीक है, अब ये बिल्कुल कंप्लीट हो गया। नंबर जो इनसाइड सेल होंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे, 0 1 2 3 एंड 4 5। लास्ट के 2 को हम रिवर्ट कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं, इनवर्ट। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। ये हो गया हमारा 3 वेरिएबल POS. Now we are in position to handle the questions. अब हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसे भी हम आपके ग्रुप में भेज दें।
No problem. That's absolutely fine. Okay. Now, do you have any doubt? Do you have any doubt? No, sir. Any confusion? B plus C, B plus C bar, B bar plus C bar and B bar plus C. Okay? कोई डाउट नहीं। अब हम एक क्वेश्चन कर लें तो सारी चीजें बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो क्वेश्चंस करने के लिए हमारे पास एक लिस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। लेट मी डिलीट दिस। ओके, तो क्वेश्चन मोस्टली ज्यादातर 4 वेरिएबल के ही पूछे जाते हैं। इस शीट पे हम लोगों ने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी और एसओपी के मोस्टली क्वेश्चन कर लिए थे, लेकिन पीएस के सब ड्रॉप कर दिए थे। तो पीएस के क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे। कौन सा पीएस का क्वेश्चन किया जाए? हम लोग एक काम करते हैं, ये वाला पीएस का क्वेश्चन कर लेते हैं। जितने भी केमैप के क्वेश्चंस होते हैं गिवन द बूलियन फंक्शन और उसमें पाई दिया होता है, पाई, तो इसका मतलब ये होता है कि वो हमारा पीओएस का क्वेश्चन है। दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट ऑफ सम। तो प्रोडक्ट ऑफ सम का क्वेश्चन प्रोडक्ट ऑफ सम केमैप के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। ओके, अभी कैसे इसका लॉजिक गेट बनना है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इतना पोर्शन कॉपी कर लेते हैं और इतना पोर्शन कॉपी करने के बाद में यहां पर इस क्वेश्चन को पेस्ट कर लेते हैं। दिस इज माय क्वेश्चन एक्चुअली। जितना भी कन्वीनियंट है ऑनलाइन क्लास हम उतना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्वेश्चन पेस्ट हो गया। पाई इंडिकेट्स प्रोडक्ट ऑफ सम। तो अगर प्रोडक्ट ऑफ सम है और 4 वेरिएबल का है तो इमीडिएटली वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर 4 वेरिएबल के मैप। नो प्रॉब्लम, लेट मी ड्रॉ। एक बार हम और ड्रॉ करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, नाउ जल्दी कुछ लोग चाहें तो मेरे साथ पैरेलली कॉपी पे कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस। करेंगे नहीं मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ ये। Sir, I am doing. अच्छा अच्छा, someone is doing actually. Very good, excellent. कोर्स में आप कितना परफेक्ट होते हैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही के ऊपर होती है। So immediately we have to write down the gray code 0 0 0 1 1 1 and 1 0. Here 0 0 0 1 1 1 1 0। बिल्कुल माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए किसी भी चीज को लेकर के। अगर माइंड डाइवर्ट हो गया तो फिर आपके अगर कोऑर्डिनेट्स गलत हो गए तो वैल्यूज भी गलत होंगी। अब यहां पर हमको लिखना है a प्लस b और यहां पर लिखना है हमको a प्लस 1 का कॉम्प्लीमेंट किया जाता है पीओएस में, ऐसा भी हम लोगों ने डिसाइड किया था। और यहां पर तो दोनों 1 है तो a बार प्लस b बार, और यहां पर हो जाएगा आपका a बार प्लस बी, ए प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार एंड ए बार प्लस बी। और यहां पर यही सारा अरेंजमेंट हो जाएगा सी डी के लिए। तो सी प्लस डी एंड सी प्लस डी बार एंड सी बार प्लस डी बार and C bar plus D. Absolutely fine. अभी अब क्या करना है हमको, इन सेल्स के नंबर तो 0 1 2 3, लास्ट के 2 हम रिवर्ट कर देते हैं, 4 5 6 एंड 7, फिर हम लास्ट रो में आ जाएंगे 8 9 10 11 थोड़ा ठीक बन जाए, 12
13, 14 and 15. Now what we have to do? Very careful. You have to be very careful. These are the position. ये आपको position दी गई है. These are the cell numbers, cell position. इन positions पे आपको 0 plot करना है. SOP में आप 1 plot करते थे, यहाँ पर आप 0 plot करें. तो 3 पर 0, 4 पे 0, 5 पे 0, 6 पे 0, 7 पे 0, 10 पे 0, 11 पे 0, 14 पे 0 एंड 15 पे 0. अब आपको सोचना है कि इसमें क्या क्या बन सकता है. सोचने के लिए आपको टाइम दे रहे हैं. यहां पर हमारे सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं और जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है क्लास 12 वो स्टूडेंट. तो दोनों को सोचना. Sir, 2 chords and 1 pair. सर 3 कॉर्ड. वेरी गुड. अगर आप अपने आंसर्स लिख कर दें तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन रिप्लाई कर रहा है. 3 कॉर्ड कैसे लिखें? चैट बॉक्स है यहाँ पर, तो आप अपने आंसर्स लिख सकते हैं. आर्या ने सबसे पहले आंसर दिया है रिटन में 3 chords. Very good, Arya. Anul is saying 3 chords. Shreya is saying 3 chords. Muskan 3 chords. Good. Farah? Amvi 3 chords. Very good. Abdullah 3 chords. Okay. ठीक है. देखो, एक होता है प्रोफेशनल तरीका किसी भी काम को करने का, एक होता है इम्प्रोफेशनल तरीका. तो प्रोफेशनल तरीका ये है, पेयर नहीं बनेगा इसमें, ठीक है. फराह सी. प्रोफेशनल तरीका ये है कि सबसे पहले अगर हम कॉर्ड बना रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ज्यादा से ज्यादा वी हैव टू कवर मैक्सिमम 0 और मैक्सिमम 1. तो 1 सेकेंड प्लीज. सबसे पहले हम इस कॉर्ड को बनाएंगे जिसमें सबसे ज्यादा 0 कवर हो रहे हैं. वेट 1 मिनट. ये है हमारा एक कॉर्ड. अब इसके बाद हम ये कॉर्ड बनाएंगे क्योंकि इसमें हमारे सारे 0 कवर हो जाएंगे. तो दिस इज कॉल्ड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ कॉर्ड. अब हमारे पास ये 0 है. वैसे तो ये पेयर भी बन सकता है, बट अगर पॉसिबिलिटी कॉर्ड की है तो फिर हम पेयर नहीं बनाएंगे. तो पॉसिबिलिटी कैसे है इसमें कॉर्ड की? सी, ये वाला 0 और ये तीनों 0 किसी ना किसी कॉर्ड में इन्वॉल्व हैं, बट हम उन्हें री इन्वॉल्व कर सकते हैं. दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड ओवरलैपिंग. तो हम ये तीनों, अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम कलर चेंज कर लें तो यू विल बी मोर बेटर. लेट मी चेंज द कलर. ये बन गया हमारा एक और कॉर्ड. अंडरस्टैंड? नाउ हाउ मेनी कॉर्ड्स आर देयर? टोटल देयर आर 3 chords. 3 chords. अब 3 chords बनने के बाद हम रिडक्शन फेज पे जाते हैं. बस यहीं पर तुमको सोचना है. सारे स्टूडेंट्स को मैं बार बार कह रहा हूं, अगर तुम्हारे 2 chord एक पेयर बन गए या 2 chord 2 पेयर बन गए तो फिर उसके बाद जब आगे जाओगे तो यू विल नॉट रिकॉग्नाइज्ड. आप रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते कि आपका आंसर सही है या नहीं सही. ओके क्योंकि जहां पर पॉसिबिलिटी chord की होती है वहां पर 100% पेयर की पॉसिबिलिटी तो रहेगी. अब इसे हम कैसे रिड्यूस करेंगे? तो रिड्यूस करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं. एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है. तो हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं. अगर किसी को समझ में ना आए तो फौरन बता देना. ठीक है. सी, सबसे पहले अगर हम इस कॉर्ड की बात करें, इस कॉर्ड की, तो जब भी कोई कॉर्ड स्ट्रेट लाइन में बनता है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में बने या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में बने, या तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन में बनेगा या वर्टिकल स्ट्रेट लाइन में बनेगा, तो बस उसके बराबर वाला ये वाला वेरिएबल देख लो, यही तुम्हारा रिड्यूस टर्म होगा. अंडरस्टैंड? अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो देखो सी कॉमन है लेकिन इसमें कॉमन नहीं, डी इसमें कॉमन नहीं है,
डी बार इसमें कॉमन नहीं है, तो ऊपर हमें कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, सो दिस इज ओनली द कॉमन टर्म इज दिस कॉर्ड। वेट, लेट मी राइट डाउन। यहां पर हम थोड़ा सा लिख रहे हैं, ध्यान देना, एक मिनट, थोड़ा इसको हम थोड़ा इधर कर लें। यहां पर हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं लिखने के लिए, तो हम लिख रहे हैं कॉर्ड 1। कौन सा कॉर्ड 1 आपने लिया है? 4, 5, 7, 6। ओके, ये हमारा कॉर्ड है। तो इस कॉर्ड का रिड्यूस टर्म क्या बन के आ रहा है? a प्लस बी बार। तो वी कैन डायरेक्टली राइट, जस्ट अ मोमेंट, एंड a, कुछ लोगों ने रिड्यूस्ड पूरा एक्सप्रेशन भी निकाल दिया होगा इतनी देर में, a प्लस बी बार। अब देखो, ये सेकंड हमारा ये वाला कॉर्ड ले लेते हैं। तो सेकंड कॉर्ड के लिए हम यहां लिखते हैं कॉर्ड 2। कॉर्ड 2 हमारा है 3, 7, 15 और 11। अंडरस्टैंड? अब इसका कॉमन टर्म क्या होगा? 1 सेकेंड प्लीज। C bar plus D bar. C bar plus D क्योंकि bar. ये भी स्ट्रेट लाइन में बन रहा है, तो स्ट्रेट लाइन में यही वाला पार्ट हमारा कॉमन होता है। अगर हम इस कॉर्ड के साइड के वेरिएबल देखें तो ए कॉमन है, बट इन दिस देयर इज नो कॉमन। बी इसमें कॉमन नहीं है, बी बार इन दोनों में कॉमन है, लेकिन लास्ट में इधर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उधर हम नहीं जाएंगे। तो सी बार प्लस डी बार विल बी द कॉमन। तो सी बार, वेट, सी बार प्लस डी बार। ओके, अब हमारे पास एक लास्ट कॉर्ड और है, तो कॉर्ड नंबर 3। कॉर्ड नंबर 3 कौन सा है? 15, 14, 11, 10। A bar plus C bar. bar plus C bar. 1 मिनट, ठीक है। कौन सा कॉमन है? देखो, एक्चुअली ऐसा है कि ये जो नंबर्स हम लोग बीच में लिखते हैं ब्रैकेट में, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स फॉर आइडेंटिफाइंग कि हम कौन से कॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो हमें एग्जामिनर को बताना है कि हमारा कॉर्ड 1 वो है जो 4, 5, 7, 6 पे बना है, हमारा कॉर्ड 2 वो है जो 3, 7, 15, 11 पे क्रिएट हुआ है, हमारा कॉर्ड 3 वो है जो 15, 14, 11, 10 पे क्रिएटेड है। तो अब एग्जामिनर को इजिली समझ में आ जाएगा आप कौन से कॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम इसकी बात करें तो लेट मी टेक अ लाइट पेन। सी, ये वाला जो कॉर्ड है उसमें साइड में ये दोनों वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, ये वाला सेट और ये वाला सेट इन्वॉल्व है। और अगर इस कॉर्ड को हम ऊपर ले जाएं तो ये वाला पूरा सेट इन्वॉल्व है और ये वाला सेट इन्वॉल्व। तो मतलब इन दोनों में हमें कॉमन फाइंड आउट करना है और इन दोनों में कॉमन फाइंड आउट करना है। तो इन दोनों में हमको कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है? ए बार कॉमन है, तो वी हैव टू राइट डाउन ए बार। और इन दोनों में कॉमन क्या है? सी बार, लेकिन बीच में प्लस साइन होना कंपलसरी है। अब हमें अपनी फाइनल एक्सप्रेशन लिखनी होती है। वी हैव को मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, फाइनल एक्सप्रेशन। तो ये हमारे सम तो आ गए हैं, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। तो प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। वेरी गुड। तो हाउ टू राइट डाउन द फाइनल एक्सप्रेशन? ए प्लस बी बार डॉट एंड सी बार प्लस डी बार डॉट ए बार प्लस सी बार। One second. This is your reduced expression. Okay. किसी कॉलेज में, मोस्टली कॉलेजेस में ऐसे भी रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन आपके सामने लिखी जाएगी। तो आप बिल्कुल F, हमारा फॉर्मूला क्या था? A, B, C, D and is equal to this is the reduced expression. Okay. Finally हमारी ये reduced expression आ गई। इससे पहले ये भी लिखा जा सकता है, बट ऑप्शनल है, आप लिखें या ना लिखें, डजंट मैटर। ओके, अब नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद इसका गेट किस तरह से बनना है वो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता है। तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है तो हम देख लेते हैं, जस्ट अ मोमेंट, 2 मिनट के अंदर हमको इसका गेट बनाना है। ये
ठीक है, सी बार डी बार बी बार डी, ठीक है, आंसर मैच हो रहा है, नो प्रॉब्लम. ड्रॉ द लॉजिक गेट डायग्राम ऑफ द रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन, अज्यूम दैट वेरिएबल इन देयर कॉम्प्लीमेंट आर अवेलेबल एज इनपुट, नो प्रॉब्लम. इसका मतलब है कि हमको नॉट गेट यूज नहीं करना. तो ए को डायरेक्ट पास करेंगे और बी बार हो जाएगा, और इन दोनों को हम पहले और गेट से पास करेंगे क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम. सी बार प्लस डी बार, तो सी बार और डी बार को पहले और से पास किया जाएगा, और फिर उसके बाद है ए बार एंड सी बार. इसको हम पहले और से पास करेंगे, एंड फाइनली these lines will be connected with AND gate. And if you have a time, so you can write down, ये लिखनी है आपको, ये एक्सप्रेशन यहां लिख दीजिए और एरो आप यहां पर बना दीजिएगा. ये आपके सिग्नल्स के फ्लो को इंडिकेट करते हैं. ये बोर्ड के हिसाब से आपको सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं, ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है. और इसको क्लियर, दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड ऑफ पीएस. अब जितने भी क्वेश्चंस हमारी शीट में, उन सारे क्वेश्चंस को आप कर लीजिएगा. क्लास इज ओवर, अंडरस्टैंड. इसे हम आपके ग्रुप में भेज रहे हैं, अभी कुछ सेकंड्स हैं. अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो पूछ सकता है. कंट्रोल सी, सेंडिंग इन योर ग्रुप. ये कौन सा क्वेश्चन है वो भी हम आपको बता देते हैं. ये एक्चुअली क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया 1 का बी, नहीं, कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया, ऊपर का कोई क्वेश्चन सॉल्व है, देख लीजिएगा क्योंकि टाइम कम है. ओके, मैं इसे और भी ग्रुप में भेज रहा हूं. मेरी तरफ से क्लास ओवर हो गई. ठीक है, we have to place, this is basically we are discussing product of sum in the K-map. So the property of PS is 0. So in K-map we have to place 0 in all the given position, in all the given position, in all the given position, right? Third point is that it is represented by pi symbol. All right, these are the three very important points. The property of P is 0. So in the K-map we have to place 0 in all the given position. It is represented by pi symbol. Okay. It provides better compatibility with NOR gate. Like SOP provides the better compatibility with the NAND gate, it provides the better compatibility with the NOR gate. So whenever it will be asked in the question, जब भी आपसे question में पूछा जाएगा कि draw the logic gate of the reduced expression using the universal gate, तो 95% preferred gate होगा NOR. Wait, I want to show you some question, then you will be better understand. See, read this question properly. One second. Not 2000, let me take 2019. See, this very important question to understand the difference between SOP and POS. Now, look at the properly. The symbol sign indicates this question is based on SOP. All right. Draw the logic gate diagram. Let me
increase the size. Now it's fine. Little more. Okay, now it's fine. Now read the second point. This is actually first point and this is second point. Now read. Draw the logic gate diagram of the reduced expression using only NAND gate. Assume that variable and their complement are available as input. This is the question based on SOP. तो SOP क्वेश्चन में आपसे NAND गेट के थ्रू बनाने के लिए कहा जाता है रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन को, एंड NAND इज अ यूनिवर्सल गेट. ऑल राइट, अब हम थोड़ा नीचे आते हैं. दिस क्वेश्चन एक्चुअली बेस्ड ऑन POS. 1 second, let me increase the size. Okay, yes, this question is based on POS. तो POS में जनरली आपसे जब यूनिवर्सल गेट की डिमांड की जाती है तो वहां पर नॉर गेट मेंशन होता है. ये एक बोर्ड का स्टैंडर्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम SOP को नॉर से और POS को NAND से नहीं बना सकते. कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिससे हम बना सकते हैं, जिसको कहा जाता है क्रॉस. ओके, तो क्रॉस हम कर सकते हैं, लेकिन अभी जैसा क्वेश्चन में गिवन है वैसा हम प्रैक्टिस करेंगे और बाद में आपको हम क्रॉस गेट्स के थ्रू भी बनाना बताएंगे. 1 minute. ओके, so this is the question based on actually I think this question I want to cover today. Let me take the copy of this question. Okay, and starting the MS Paint. See, just I'm pasting here. Increasing the size of this question. मेरे साथ साथ आप भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ये 2019 बोर्ड का क्वेश्चन है बेस्ड ऑन POS. ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, छोटा क्वेश्चन है. 0, 1, 2, 8, 9, 11, 13 and 15. तो immediately we have to draw the K-map structure for the POS. Understand? So just 1 second. Okay, so how many blocks will be there? Of course there will be 16 blocks. ओके, पार्टीशन वाइज ये पोर्शन आपका AB का है और ये पोर्शन आपका CD का है. तो लेट मी राइट डाउन ग्रे कोड्स. इतनी बार मैं ये लिखूंगा कि आपको बिल्कुल याद हो जाएगा. 0 0 0 1 1 1 and 1 0. 0 0 0 1 1 1 1 0. अब इन बिट्स के अकॉर्डिंग ये जो हम लोग ग्रे कोड्स लिखते हैं, दीज आर ग्रे कोड्स, इनके अकॉर्डिंग हमें A और B और C और D की वैल्यूज लिखनी है. तो नो प्रॉब्लम. 0 0 तो हमें चाहिए होता है, वी नीड 0 0 इन द POS. तो यहां पर हम लिखेंगे A प्लस B. अब यहां लिखेंगे A प्लस 1 नहीं चाहिए है तो 1 का कॉम्प्लीमेंट, तो A प्लस B बार. यहां पर आपके दोनों 1 हैं तो A बार प्लस B बार. होप यू अंडरस्टैंड. तो जब हम 1 को कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं तो 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 0. ओके, वी नीड ईच एंड एवरी वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ 0. A प्लस B बार, A बार प्लस B बार, A बार प्लस B. यहां पर हमें यही सीक्वेंस फॉलो करना है, लेकिन CD के लिए तो C प्लस D, अंडरस्टैंड, एंड C प्लस D बार एंड C बार प्लस D बार एंड C बार
प्लस डी। हमने टेम्पलेट नहीं बनाया था क्योंकि हम चाहते थे कि एक बार और हम इस सीक्वेंस को आपके सामने रिवाइज करा दें। Now we have to write down the positions. Positions are absolutely same. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। जल्दी से बताइए कि इसमें क्या मिस्टेक है। Can you please tell what is the mistake in this K-map structure? सर पहले 15 आएगा बाद में 14। Yes. ये जो सेल है वो 15 होगा और ये जो सेल है वो 14 होगा। यस सर। क्लियर? अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आगे आने वाली चीजों में भी प्रॉब्लम क्रिएट होती जाएगी। तो जस्ट yes Abdullah, right, then 15 should be here। ये नंबर एक्चुअली हम कॉपी पे बहुत बड़े नहीं लिखते हैं, छोटे लिखते हैं। अब हमें इन पोजीशंस पर जीरो प्लॉट करना है, तो प्लॉटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं। 0, 1, 2, 0, 1, 2, 8, 9, okay, this one is 8, okay, this one is 9, 8, 9, 11, 13, where is 11? This one is 11, and this is 13, and one more is 15। Now, अब आपका काम शुरू हो रहा है सोचने का, इसमें क्या बन सकता है, बहुत ध्यान से देखना है आपको। 2 क्वाड 1 पैर। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग भी अब सोचना स्टार्ट कर दें। 2 chord 1 pair, very good Abdullah। 2 chord 1 pair, Anul, very good। So पहले कौन सा कॉर्ड बनाया जाए? पहले 9, 13 जिसमें सबसे बेटर विजिबिलिटी हो और सबसे ज्यादा जीरो कवर हो रहे हैं। तो सबसे बेटर विजिबिलिटी होती हमारी स्टेट कॉर्ड में, तो ये कॉर्ड बन सकता है, बिल्कुल इजी है और इसे बनाया जा सकता है। अंडरस्टैंड? अब हम ये स्टेट कॉर्ड था, अब हम एक कॉर्ड जो है वो मैप रोलिंग पे बनाएंगे। मैप रोलिंग का मतलब होता है, मैप रोलिंग हमारे के मैप में 2 तरह की होती है, एक टॉप टू बॉटम मैप रोलिंग, एक साइड टू साइड मैप रोलिंग। मतलब ये 2 1, लेट मी टेक अनदर पेन, एक्चुअली दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। तो ये वाले 2 1 बहुत इजीली इन दोनों 1 के साथ कोऑर्डिनेट करके एक कॉर्ड बना सकते हैं। दिस इज माय सेकंड कॉर्ड एक्चुअली, and this chord is based on map rolling। Now what about this 0? How to adjust this 0? इसे कैसे एडजस्ट किया जाए? साइड टू साइड मैप रोलिंग से पेयर बना दे। साइड टू साइड मैप रोलिंग से पेयर बन सकता है, वेरी गुड। तो 2 हमारा 0 के साथ मैप रोल कर सकता है। सिर्फ वी हैव ओनली अ सिंगल ऑप्शन, हमारे पास यहां पर एक सिंगल ऑप्शन है। लेट मी टेक अनदर पेन एक्चुअली। ये इसके साथ मैप रोल कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो नाउ देयर आर एक्चुअली, जब हमारे सारे 0 और सारे 1 ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, कवर्ड हो जाते हैं, इंगेज हो जाते हैं, तो हमारा ये कॉर्ड, ऑक्टेट और पेयर बनाने का प्रोसीजर रुक जाता है। अब हम कोई कॉर्ड, कोई ऑक्टेट, कोई पेयर नहीं बनाएंगे, ये वाला प्रोसीजर ओवर हो गया। अब हम जाते हैं रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन की तरफ। तो रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन के लिए, ठीक है, हम सबसे पहले कॉर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो कौन कौन से कॉर्ड्स हमारे बन रहे हैं? यहां पर एक्चुअली जो सबसे हमारा जो मेन कॉर्ड है, जो हमने सबसे पहले बनाया था,
कॉर्ड 1, और कॉर्ड 1 के हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं 13, 15, 9, 11। ये हमारा कॉर्ड है। अच्छा, अब इस कॉर्ड के लिए कॉमन टर्म्स क्या होंगे? कोई A bar plus B bar. वेरी गुड। ए बार A bar प्लस plus D. ए बार प्लस D bar. कुछ लोगों ने बहुत जल्दी बता A दिया, bar. अब कुछ लोगों का रिस्पॉन्स बहुत फास्ट हो रहा है। वेरी गुड। विप्रांश, यू ऑल्सो ट्राई टू टेल, एंड मृदुल गुप्ता, आमवी। ओके ओके फाइन। सी देखो, ये जो कॉर्ड है उसको साइड में देखा जाए तो ये वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, और इसको अगर ऊपर ले जाया जाए तो ये वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है? ए बार, और इसमें कॉमन मिल रहा है हमको डी बार। तो ए बार प्लस डी बार विल बी द कॉमन ऑफ दिस कॉर्ड। लेट मी रिमूव दिस सर्किल। ए बार, और बीच में प्लस साइन आता है क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ सम सॉल्व कर रहे हैं। तो ए बार इधर से हमने पिक किया और इधर से हमारा मिल रहा है डी बार। अंडरस्टैंड? Okay, now we have to write down the reduced expression for the second. Cot 2 हमारा बना था मैप रोलिंग पर, यानी कि 0, 1, 0, 1, 8, 9। ओके वेरी गुड। अब इसका रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन क्या होगा? B B plus plus C. C. ओके, तो ये वाला जो कॉर्ड है उसके साइड में ये वेरिएबल इन्वॉल्व है, और इस कॉर्ड को अगर हम ऊपर देखें तो ये वेरिएबल इन्वॉल्व है। पहले हम मार्क करते हैं कौन कौन से वेरिएबल इन्वॉल्व। इन दोनों 1 के लिए साइड में ये वाले वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। अब इनमें कॉमन हमको b मिल रहा है। देखो, b इसमें भी है और b इसमें भी है, तो वी हैव टू राइट डाउन कॉमन एंड प्लस, और इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन हमें c मिल रहा है, तो b प्लस c। नाउ वी हैव टू राइट डाउन पेयर। तो पेयर हमारा बना था, पेयर में सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 0 और 2 पे, तो 0, 2। अब इस पेयर को देखें अगर हम, इस वाले पेयर को, तो इसमें एक तो ये वेरिएबल इन्वॉल्व है, वेरी गुड, एक ये वेरिएबल इन्वॉल्व है, और साथ में ये भी वेरिएबल इन्वॉल्व है। अब इसमें a प्लस बी का तो कोई कंपैरिजन वेरिएबल है नहीं, तो a प्लस बी विल बी कंसिडर एज कॉमन, हाँ, तो ये तो पूरा ही लिखा जाएगा a प्लस बी, क्योंकि इसके कंपैरिजन में कोई वेरिएबल है नहीं। तो लेट मी राइट डाउन a प्लस बी। और ऊपर D कॉमन है। अब इसमें और इसमें देखना है कौन सा कॉमन, तो इसमें कॉमन हमको मिल रहा है d, तो प्लस, ओके। नाउ वी हैव टू राइट डाउन आवर reduced expression with some different color। तो हमारी reduced expression आ रही है a bar plus t bar, that is my pair, and b plus c, sorry, यहां पर आपका डॉट आ जाएगा, देन b plus c डॉट a plus b plus d। इसे आप ब्रैकेट में कवर कर लें तो बहुत ज्यादा अच्छा है। दिस इज माई फाइनली रिड्यूस्ड एक्सप्रेशन। ओके, अब इसका गेट किस तरह से बनना है वो सब अभी हम देखेंगे। पहले हम इसको कंपेयर कर लें अपने आंसर शीट से। a बार प्लस d बार b प्लस c, a बार प्लस d बार b प्लस c, and one more pair is there, a plus b plus d। करेक्ट, इट्स करेक्ट, a plus b plus d। अब इसका कैसे लॉजिक गेट बनना है?
इसका लॉजिक गेट क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है कि आपको किस तरह से बनाना है। 1 सेकेंड। इसका लॉजिक गेट जो बनाना है एक्चुअली उसमें हमें यूजिंग नॉर गेट करना है। ओके, और एज्यूम दैट वेरिएबल एंड देयर कॉम्प्लीमेंट आर अवेलेबल एज इनपुट। इसका मतलब ये होता है कि आपको नॉट गेट यूज नहीं करना है, प्योरली यू हैव टू यूज द नॉर गेट। ओके, नॉर गेट। तो नॉर गेट के लिए ठीक है, यहां पर बनाते हैं नॉर गेट सी। तो ए बार को आप डायरेक्ट पास करेंगे और डी बार को आप डायरेक्ट पास करेंगे। उसके बाद इसे नॉर गेट से कनेक्ट करेंगे। ये आपका ये सेट कंप्लीट हो गया। अब इस सेट के लिए बी प्लस सी है, तो बी को और सी को दोनों को नॉर गेट से पास करेंगे। अब ये ए प्लस बी प्लस डी है। ओके, थोड़ा मैंने स्क्रीन को स्क्रॉल किया है। ए बी डी, इन तीनों को फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पास बाय नॉर गेट। ओके, नाउ बीच में आपके पास डॉट ऑपरेटर है। डॉट ऑपरेटर्स, तो डॉट ऑपरेटर जनरली जो है वो एंड गेट से आता है, लेकिन हमें यहाँ पर सारा काम यूनिवर्सल गेट से ही करना है। तो ये जितनी भी लाइंस हैं इनको भी हम एक नॉर गेट्स। स्टार्टिंग में हर चीज थोड़ा सा डिफिकल्ट होती है, लेकिन जब हमको समझ में आ जाती है तो वही चीज इजी हो जाती है। Okay, and now this expression will be copied here. This is the complete solution for 2019 board. Board exam, US question. बिल्कुल, कंट्रोल सी, ये आपके ग्रुप में चला गया, कुछ आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको टाइम मिले द कंप्लीट क्वेश्चन इज देयर। ठीक है, इट विल ट्रांसफर इन द फ्यू सेकंड्स। नेट्स ट्रांसफर। आप इसको ऐसे आराम से इसको एक्सपैंड करके देख सकते हैं। द कंप्लीट सॉल्यूशन इज देयर। This is logic gates, this is your reduced expression, these are your quad 1 quad 2 pair, और ये क्वेश्चन 2019 का उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपको पूरा क्वेश्चन प्रॉपर विजिबिलिटी के साथ मिल रहा है। ठीक है, इसे कभी भी आप एक्सपैंड करके इस तरह से देख सकते हैं, उसको कॉपी पे जरूर नोट कीजिएगा। ओके फाइन, नाउ देखो, लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।